students. Today we will have a quick recap of our 10th chapter, that is motion and measurement. If you have to go through the full chapter, I have given link in description. You can go to that link and can have a full explanation of the chapter. Now the name of the chapter is motion and measurement of distances. In this chapter, first of all, we have done the transportation modes. So, 3 type of surfaces are there: land, air and water. In land, very simple, bus, cycle, these are the examples. Of air, transportation through air via aeroplane, helicopter, and through water, ship, boat. So these are some of the modes of transport. Then we have done measurement of length. So length we can measure, and SI unit of length is meter. SI unit full we have understood in our explanation of the chapter. You can again go to that video and can have an explanation. Now these are some of the conversions. 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so these conversions will be helpful to you in your small numericals of this chapter. So you have to learn them. Now then we had the definition of measurement. Measurement is comparison of an unknown quantity with known quantity. ठीक है, क्या होता है मेजरमेंट? कंपैरिजन होता है, कंपेयर कर रहे हैं हम दो चीज़ों को. किसको? एक तो अननोन क्वांटिटी को हमने जिसको जानना है, किससे कर रहे हैं हम? नोन क्वांटिटी से जिसको हम जानते हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट. So these definitions you have to learn of this chapter, measurement. And next one is motion. Motion is change in position of an object with time. ठीक है, पोजीशन में चेंज होता है ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ. ठीक है, थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्ट कहीं और था, थोड़ी देर बाद कहीं और चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोशन. नाउ देन आफ्टर दैट वी हैव डन द टाइप्स ऑफ मोशन. So in that we have done 3 types. First is rectilinear motion, then periodic motion, and then circular motion. Now regarding rectilinear motion, the objects move in a straight line in rectilinear type of motion. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, जैसे हमने करी थी इसकी डेफिनेशन. एंड इन क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो वी हैव डन दिस rectilinear motion in detail with example. Okay, then periodic motion, objects motion repeats after regular time interval. ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो रिपीट होती है, दोबारा दोबारा होती है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. देन सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ. ओके, तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है, सर्कल में मूव करता है. ओके, ये सारा आपने सब अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखा हुआ है विद एग्जांपल्स. ओके, इन दिस वे यू कैन मेक अ माइंड मैप एंड कैन हैव अ क्विक रीकैप ऑफ द चैप्टर एट द एंड. ओके, नाउ आई विल टेल यू about some of the numericals of our exercise. First was the height of a person is 1.65 meter. Okay, height जो है वो 1.65 मीटर दी हुई है.
express it into centimeter and millimeter. Okay, now only I have told you in mind map कि ये जो conversions वाले numericals हैं that are related to this chapter. So मीटर को हमने इसमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में. ओके, 1.65 मीटर दिया हुआ है हमारे पास. सो हाइट ऑफ ए पर्सन गिवन इज 1.65 मीटर. नाउ वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 मीटर जो है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. ओके, तो अब हमारे पास क्या है, 1.65 मीटर है. ठीक है, तो 1.65 मीटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वाई? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमने 1.65 मीटर को. ओके, तो सेंटीमीटर ज़्यादा होता है मीटर से. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द डिजिट्स. ठीक है, वैसे मीटर इज अ बिग क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड. नाउ देन वी विल मल्टीप्लाई दिस 1.65 by 100 and we will be getting 165. ठीक है, ये पॉइंट वाला आपने सीखा होगा अपने मैथ्स में भी, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो इसका डेसिमल है, पॉइंट है, ये यहाँ से 2 पॉइंट्स आगे चला जाएगा. ठीक है, 100 से करा तो ये इसमें 2 zeros होते हैं ना, कि तो दिस विल go from here. It will be when it will be multiplied by 100. So 1.65 centimeter इसका आंसर आ जाएगा. Then we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter के इक्वल होता है. ओके, तो हमारे पास अब क्या है, 165 सेंटीमीटर पहले ही आ गए. ओके, तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में. ओके, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हैं, 10. तो 165 में कितने होंगे, ज़्यादा होंगे. ओके, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से. ओके, सो आवर आंसर विल बी 1650 मिलीमीटर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतने मिलीमीटर है हमारे पास. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द डिस्टेंस बिटवीन Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. ठीक है, तो राधा के होम का और उसके स्कूल का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इतने मीटर से. हमने इसको क्या करना है, किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है. नाउ हेयर डिस्टेंस गिवन इज 3250 meter. Okay, now we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. ठीक है, तो 1000 मीटर के इक्वल होता है. तो 1 मीटर देन विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर. ठीक है, ये जो अब इसके इक्विवेलेंट के दूसरी साइड जाता है, 1 मीटर अगर हमने निकालना है तो क्या होगा, ये जो 1000 है वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1000. ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर. तो 3250 मीटर दिया हुआ है हमारे को. ओके, सो वी विल बी डिवाइडिंग दिस 3250 बाय 1000 से डिवाइड करेंगे हम इसको. ये वाला 0 जो है वो कट हो जाएगा. ओके, और जब हम 325 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.25. ओके, एंड दिस इज किलोमीटर. 3.25 किलोमीटर, दिस इज द आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज while measuring, question number 7, while measuring the length of a knitting needle. एक knitting needle की लेंथ थी, निटिंग प्रोसेस पढ़ा था आपने 3rd चैप्टर में. ओके, तो वो नीडल थी, उसकी जो लेंथ थी, रीडिंग ऑफ द स्केल एट 1 एंड इज 3 सेंटीमीटर.
ओके ये मैंने आपको मेजरमेंट जब हम बता रहे थे तब भी बताया था। स्केल जैसे अगर एक साइड से टूटा हुआ है, ओके तो इनका भी जो है वो टूटा हुआ होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसको मेजर किया स्केल से निटिंग नीडल को, तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने 3 से, और एंड कहाँ पे आया 33.1 पे। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल, तो हमने लेंथ निकालनी है नीडल की। ओके नाउ हेयर वी आर हैविंग फाइनल रीडिंग, हमारी क्या थी 33.1 सेंटीमीटर आई है। ओके और इनिशियल मतलब हमने जहाँ से स्टार्ट किया है, स्टार्ट वाली रीडिंग क्या थी 3 सेंटीमीटर। ओके सो हमने एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे हम, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है, जो फाइनल रीडिंग आई है उसमें से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे। सो 33.1 में से हमने क्या करना है 3 को माइनस कर देना है, एंड द आंसर विल बी 30.1 सेंटीमीटर। सो दीज टाइप ऑफ conversions or numericals, they are related with this chapter. So that's all for this chapter. Thank you.